معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ آپ لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ باغور اس پہ سنیں گے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم یعنی نام عبدالقادر تھا، کنیت ابو محمد، عرفیت غوث الاعظم، لقب، چونکہ لقب بہت تھے لقب، جن میں سے کچھ بتا رہے ہیں: محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین وغیرہ۔ یہ سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی تھے۔ ان کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ ان کی والدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ الصومعی الزاہد۔ ایک بار کا واقعہ ہے، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ چونکہ ان کو پیاس بھی بہت زیادہ لگی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس دریا کے کنارے سائڈ میں، کنارے حصے میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا۔ تو انہیں بھوک لگی تھی اور دل میں وسوسہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ کس کا ہے، کس کا نہیں ہے، لیں یا نہ لیں۔ لیکن بھوک کی تقاضے کی وجہ سے وہ ترنت اس سیب کو لیے اور کھائے، لیکن دل میں تذبذب پیدا ہو رہی تھی کہ اب ہم کریں تو کیا کریں، چونکہ جس کا سیب ہے اسے اجازت نہیں لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہوگا۔ تو وہ پھر ترنت لوٹ پڑے اور راستے میں یہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ آخر سیب کا باغ کہاں نظر آئے گا۔ کسی اس دریا کے کنارے ہی سیب کا باغ ہو سکتا ہے۔ چلتے گئے، بہت دور جانے کے بعد انہیں ایک سیب کا باغ دکھائی دیا۔ اس سیب کے باغ والے سے جا کے ملاقات کیے۔ سیب کے باغ کے جو رہبری کرنے والے تھے، جو رکھوالی کرنے والے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ صومعی۔ ان سے ملاقات کیے، سلام و کلام کے بعد انہوں نے اپنی باتوں کو ظاہر کیا اور بولے کہ یہ تو ہم سے غلطی سے ہو گئی یا بھوک کی شدت کی وجہ سے ہو گئی، آپ اس کے عوض میں جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ اس کی سزا ملے گی، آپ کچھ دنوں تک میرے باغ کی رکھوالی کیجیے، اس کے بعد میری ایک لڑکی ہے، اس سے آپ شادی کیجیے، نکاح کیجیے۔ لڑکی کی خوبیوں کو ظاہر کرنے لگے کہ میری لڑکی جو ہے آنکھوں سے اندھی، کان سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ سے لولی، پیر سے لنگڑی ہے۔ تو یہ بولے کہ ٹھیک ہے، جب ہم نے غلطی کی ہے تو سزا میں اگر یہی ہے تو مجھے منظور ہے۔ جب لڑکی کو دکھایا گیا، نکاح کی گئی، تو دیکھنے کے بعد وہ تعجب ہوئے، کیونکہ جو آثار بتائے گئے، جو باتیں بتائی گئیں، وہ بالکل ضد تھی۔ کیونکہ جو نظریہ بتایا گیا، جو خصلتیں بتائی گئی، بالکل اس کے ضد تھے۔ وہ کافی حسین و جمیل تھی اور سیرت مند تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو جو خصلتیں بتائیں، جو شکل و صورت بتائی، وہ تو چیز ان میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ صومعی نے کہا کہ دیکھیے، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اندھی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ میرے علاوہ یہ کسی کو دیکھی نہیں، کیونکہ اسے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ گونگی ہے، اس کا مطلب میرے علاوہ کسی سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لنگڑی ہے، اس کا مطلب کہ یہاں سے کہیں جاتی نہیں۔ لولی ہے،
यानी इसके हाथ से किसी तरह के गलत काम नहीं हो पाते। और जो कुछ भी मैंने एज़ा के बारे में मतलब जो भी बातें बताई, यही इसका मकसद हुआ कि काफ़ी नेक व सालेह हैं। चूँकि ये काफ़ी नेक और सीरतमंद थी और कुरान की तिलावत करने वाली थी। जब भी इनको वक्त मिलता था ये कुरान की तिलावत किया करती थी। निकाह हो गई, ये लोग साथ आ गए। विलादत के मुतालिक ये बयान किया जाता है कि जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का वक्त आया, उस वक्त इनकी अम्मी की उम्र जो थी वो 60 साल की थी। और सबसे बड़ी बात कि जब ये पेट में थे, शिकम मुबारक में थे, और ये जब कुरान की तिलावत किया करती थी तो ये बगौर सुना करते थे। इनका कुरान का पढ़ना उनके ऊपर असर कर रहा था, यानी उससे मुतासिर हो रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा भी महसूस किया गया, इनकी अम्मी बताती हैं कि कभी हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि अगर छींक आती थी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते तो शिकम मुबारक से आवाज़ आती या रहमतुल्लाह, तो ऐसा लग रहा है कि ये अंदर से जवाब भी दे रहे थे। ये करामात में से आता है। इनकी पैदाइश, इनकी विलादत 470 या 71 हिजरी में बमुताबिक 1078 ईस्वी में गिलान या जिलान में हुई थी। इसीलिए इनको गिलानी या जिलानी कहते हैं। चूँकि इनके अब्बा को, इनके वालिद साहब को जंग से काफ़ी रोहबत थी। एक बार का वाक़या है कि एक बादशाह ने इनके ऊपर हमला आवर किया तो ये जंग करने के लिए तैयार हुए। गिरफ़्तार करके ले गए लोग और उनसे बातें की, तो उस बादशाह ने मुतासिर होकर कि वाकई जंग करने के लिए आमादा रहते हैं, ये जंग से पीछे नहीं हटते, तो इसलिए इनको जंगी दोस्त का खिताब दे दिए। बचपन, चूँकि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही यानी मादरजाद ही और वली थे, और इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं जिसको वक्तन फ़क्तन मैं बयान करूँगा। चूँकि इनकी पैदाइश जो हुई थी वो रमज़ान की चाँद में हुई थी। आज रमज़ान की चाँद नज़र आया तो अगले दिन चाँद नज़र आया। इसकी सबूत के लिए, इसकी शहादत के लिए लोग अफरा तफरी मचा के रखे थे, इधर उधर घूम रहे थे कि आखिर आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, रियल में चाँद नज़र आया था कि नहीं आया था। लोग इधर उधर से शहादत की तलाश में घूम रहे थे और बलाखिर पहुँचे इनकी अम्मी के पास, यानी कि फ़ातिमा बिन्त सैयद अब्दुल्लाह सोमाई के पास पहुँचे और उनसे मुखातब होकर बोले कि ये बताइए कि आपने चाँद देखा या आपके पास इसकी कोई शहादत है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी शहादत ये है कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर आज दूध सुबह से ही नहीं पिया है। तो ये एक बहुत बेस्ट और अच्छी शहादत है चाँद नज़र आने की और रमज़ान की शुरुआत की। तो सब लोगों ने इस शहादत को तस्लीम किया और ये रूल रहा उनका कि पूरे रमज़ान दिन भर दूध नहीं पिया करते थे, बल्कि अफ्तार के वक्त ही पिया करते थे। इससे पता चलता है वो काफ़ी विलायत के अंदर थे और बचपन से ही एहतियात रखते थे। अब कुछ बड़े हुए, चूँकि इनका शुगल था कि बच्चों के साथ नहीं रहते थे। एक दिन की बात है कि गांव में एक सांड आया, बैल आया। बैल के पीछे सारे बच्चे दौड़ने लगे। ये भी गुज़र रहे थे तो देखे कि सारे बच्चे हैं तो ये भी दौड़ने लगे। चूँकि बैल तेज़ी से दौड़ रहा था, बाकी बच्चों की
जो क़ुव्वत या रफ्तार उस तरह की नहीं थी, वो लोग नहीं दौड़ पा रहे थे। लेकिन अब्दुल कादिर दौड़ते दौड़ते बैल के पीछा कर लिए। बैल रुका, पीछे घूम के देखा तो सिर्फ अकेले ही थे, बाकी बच्चे बहुत दूर थे। तो बैल को ज़ुबान अल्लाह ने दी और बैल ने कहा कि हज़रत आप मेरे पीछे क्यों हैं, सारी दुनिया आपके पीछे होगी, हमारे पीछे क्यों हैं, हमारी क्या बिसात कि आपको अपने पीछे ले चले, इसलिए आप जाइए, आपको हमारे पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात इनके साथ पेश आए बचपन में भी। सबसे बड़ी बात है कि तालीम और तरबियत का जो हिसाब था, क्योंकि बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से ये अपने नाना के पास चले गए, नाना अब्दुल्ला सोमई के पास चले गए। वहीं उनकी परवरिश हुई और तालीम और तरबियत भी वहीं हुई। 10 बरस के होने पर शहर के मदरसे में इन्होंने तालीम हासिल की। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो शहर के मदरसे में जब गए, मौलाना साहब बोले कि पढ़ो, बिस्मिल्लाह करो, औज़ुबिल्लाह करो, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह करो। तो वो जो है औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद तकरीबन 18 पारा सुना लिए, या ये बताए कि मैं 18 पारा कन्फर्म याद किया हूँ। वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को भी 18 पारा ही याद है और वो पढ़ा करती थी, मैं सुना करता था, जिसकी वजह से मुझे असबर हो गया। फिर एक दिन की बात है कि मौलाना कभी किसी मौजू पर, किसी बात पर उनको बोले कि क्यों नहीं याद किया, या कोई बात थी जिसकी वजह से उनके कान पकड़े। तो उन्होंने कहा कि देखिए हज़रत, पढ़ना जो है वो सामने आसमान के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने जब आसमान पर देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। वो तर्जुम में हो गए और ये बात बिल्कुल उनके ऊपर तारी हो गई कि ये सिंपल और साधारण लड़का नहीं है। इसलिए वो बोले कि अब यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से फारिग हो गए। तो उनको पढ़ने का शौक़ जब ज़्यादा हुआ तो अपनी अम्मी से इजाज़त लिए। अम्मी 80 अशरफिया दी कि 80 अशरफिया लीजिए और जाइए शहर यानी बगदाद में जाके पढ़िए। 80 अशरफियों में से उन्होंने 40 अशरफियाँ अपने भाई सैयद अबू अहमद के लिए रख दिए और उसके बाद 40 अशरफियाँ लेके, चूँकि 40 अशरफियों को उनकी अम्मी उनके कपड़ा में सी दी थी ताकि कहीं गिरे ना, कोई निकाले ना, चल दिए। रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह आया और जिस ग्रुप के साथ, जिस गिरोह के साथ, जिन लोगों के साथ ये जा रहे थे, सबके ऊपर हमला बोल दिया, सबकी चीज़ों को छीन लिया गया। और एक डाकू आके इनसे पूछा कि तुम भी कुछ लिए हो? तो बोले कि हाँ लिए हैं, 40 अशरफियाँ लिए हैं। वो बोला कि देखें, दिखाए। तो ये अपने सरदार से जाके बोला कि एक लड़का है जो बिल्कुल सच बोल रहा है, 40 अशरफियाँ लिया है, अगर चाहे तो झूठ बोल के बचा भी सकता था, तो लेकिन ये सच बोल रहा है और अशरफियाँ लिया भी है। सरदार भी वहाँ आए, उसने देखा कि लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है। वो पूछे कि बाबू, अगर तुम चाहते तो इसे बचा सकते थे, अगर आप चाहते इसको बचा सकते थे, फिर आप क्यों बोले? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी अम्मी ने ताकीद की है, मेरी अम्मी ताकीद किया करती हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना है, इसलिए मैं अम्मी की बात और सच के दामन को नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं सच बोला। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बातें इतनी असर की कि डाकुओं का दिल और दिमाग दोनों चेंज हो गया, दोनों में तब्दीली आने लगी कि यह एक लड़का जो अपनी अम्मी की बात और सच्चाई की राह को नहीं छोड़ सकता,
پھر ہم لوگ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لڑکے سے سبق حاصل کرنی چاہیے، اور اس لڑکے کی بات سے کافی اثر آموز ہوئے اور وہ لوگ ڈاکو سے شریک بن گئے اور عہد کر لیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوئی غلط کام نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی طرح کی ڈکیتی کریں گے۔ اس کے بعد بغداد پہنچ گئے، وہاں علماء اکرام سے علوم شریعت حاصل کیے، بچپن سے ہی قرآن کے کچھ حصوں کا حفظ کر لیے تھے۔ تو اس کے بعد قرآنی رموز، علم فقہ، قرآن و حدیث سیکھے۔ علم سیکھنے کے لیے کافی مشقت کیا کرتے تھے، چونکہ والدہ نے انہیں 40 اشرفیاں دی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ان کا 40 اشرفیاں ان کی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جب ختم ہو گئیں تو ان کے اوپر فاقہ کشی طاری ہو گیا، لگ بھگ 20 دن تک فاقے رہے۔ اس فاقہ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ گھومنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ گھومتے گھومتے ایک بار ایک کھنڈہر کی طرف چلے گئے۔ جب کھنڈہر کی طرف گئے تو کھنڈہر میں دیکھے کہ کچھ لوگ وہاں بھوکے ہیں، اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی گنتی تقریباً 70 تھی۔ ان کو لگا کہ ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، میں بھی بھوکا ہوں۔ جب ان لوگوں کو دیکھ کے پھر واپس بغداد آئے تو ایک شخص کے بذریعے ان کی امی کچھ سونا بھیجی تھی کہ دے دیجئے گا، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ تو اس سونے کے لگ بھگ آدھا حصہ وہ اپنے لیے رکھ لیے اور آدھا حصہ ان 70 آدمیوں، ان 70 فقیروں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ چونکہ بچپن سے ہی ان کو شوق تھا نیک راستے پر چلنا، دوسرے کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب ان کی خصلتوں میں سے تھا۔ تقریباً اس کے بعد مشائخ و اساتذہ سے علم حاصل کر کے وہ جنگل میں چلے گئے۔ تقریباً جنگل میں 25 سال تک رہے۔ لگ بھگ 1127 عیسوی کو واپس بغداد آئے، اور بغداد آنے کے بعد علم تفسیر، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم لغت، علم ادب، علم نحو، علم مناظرہ، علم عروض، علم تاریخ، علم فراست وغیرہ میں کمال حاصل کی۔ بغداد میں ابو الخیر حماد بن مسلم وحاص سے علم طریقت بھی سیکھے۔ اس کے بعد اپنے پیر بزرگ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی سے بیعت ہوئے۔ آخر میں شیخ مخرمی نے انہیں ایک خرقۂ ولایت پیش کیا اور بتائے کہ یہ خرقۂ ولایت وہ خرقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مجھ تک پہنچا اور میں اس کو آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اس خرقہ مبارک کو لے کر جو واپس آئے، جب واپس آئے تو اب ان کی کچھ کرامات کو ظاہر کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ اس سے قبل ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ ان کی حسب و نسب کیا ہے۔ حسب و نسب میں یہ بتا دینا بہتر رہے گا کہ والد کا تعلق حسنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور والدہ کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق حسن اور حسین یعنی حسنی اور حسینی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ سید و عالی نسب در اولیاء است، سید و عالی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضی است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضی است۔ ان کی نسب کے بارے میں تھوڑی سی ایک نظر غور کرتے ہیں۔ عبد القادر بن ابو صالح جنگی بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض بن حسن مسنہ بن سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں نسل میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ ان کے اساتذہ میں غور کریں گے کہ کون کون استاد رہ چکے ہیں۔ ایک علی سعد مخرومی جنہوں نے خرقہ مبارک دیا، ابو غالب باقلانی، احمد بن مظفر بن سوس، ابو القاسم بن بیان، جعفر بن احمد سراج، ابو سعد بن خشیش اور ابو طالب یوسفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس حساب سے ان کا جو تھا تعلیم و تربیت کا زمانہ ختم ہوا۔ کچھ کرامات کی طرف چلتے ہیں، ان کرامات پہ غور کریں گے۔ ایک بار کی واقعہ ہے، ایک چور ان کے گھر تشریف لایا، یعنی آیا اور چوری کرنے لگا، تو یہ جاگ گئے۔ جاگنے کے بعد دیکھے کہ کوئی چور ہے، چوری کر رہا ہے، تو یہ ان کی مدد کرنے لگے، چور کی مدد کرنے لگے اور رکھوا کے اس کے بعد بولے کہ سب کچھ لے جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایک بات میری مانو کہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ چور جو ہے سارے ساز و سامان کو لے کے چلنے کی تیاری کیا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہوئی، وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اذان ہوئی، ترنت بچھا کے مصلی نماز شروع کر دیا، اور سارے لوگ جو صبح میں ادھر ادھر چل قدمی کرنے کے لیے نکلے، اس کو دیکھے تو وہ بھی دیکھا باقی لوگوں کو، اور چونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا، اس کو سارے لوگ اچھے سمجھتے تھے، لیکن چوری کرتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس دن جب معلوم ہو گئی تو وہ کافی شرمندہ ہوا اور اس کے بعد چوری کرنا چھوڑ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نے مجھے سدھار دیا۔ دوسری بات، ایک بار کی بات ہے کہ دجلہ ندی میں کافی طوفان آ گیا تھا، سیلاب آ گیا، سارے لوگ تراہی میں پڑ گئے، بڑی مشکل میں پڑ گئے کہ اب جو ہے شہر میں آ جائے گا، تو جس کی وجہ سے کافی افراتفری مچ جائے گی۔ جا کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیے، وہ جو ہے اپنا عصا لے کے پہنچے اور دجلہ دریا پر ایک عصا مارے اور بولے کہ اللہ کے حکم سے خاموش ہو جائے۔ دجلہ خاموش ہو گیا، بالکل شانت ہو گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ملک شام جانے والا ایک تاجر جا رہا تھا، تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملا اور بولا کہ ہم سفر میں نکل رہے ہیں، تجارت میں نکل رہے ہیں، بتائیے کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مت جاؤ سفر کے لیے، شام کا سفر تمہارے لیے کافی خطرناک ہے، راستے میں ڈاکو ملیں گے، لوٹ پاٹ ہوگی، تمہاری جان کے بھی خطرے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ارادہ ترک کر دو۔ یہ جاننے کے بعد پھر وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور وہ تذکرہ ان سے کیے اور بولے کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کہی۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ جو واقعہ ہونے والا ہے، جو خطرناک واقعہ، اس کو رفع کر دے۔
और बोले कि आप सफ़र करें, कोई बात नहीं है, अल्लाह मुहाफिज है। उस सफ़र किए और रास्ते में एक जगह रात हुई, वो सो गए थे। सोने के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा कि कुछ डाकू आए और लूटपाट किए और इनको कत्ल भी कर दिए। फिर जब नींद टूटी तो देखे कि वो सही सलामत है। उसके बाद अपना सफ़र जारी रखे। जब वो वापस लौट के आए तो सारा वाक़या पेश किया तो हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो वाक़या तुम्हारे साथ पेश होने वाला था, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और उस वाक़ये को ख्वाब में तब्दील कर दिया। एक दिन की बात है कि एक 90 साल की बुढ़िया काफ़ी दिनों से गमगीन उदास थी। वो आके गिड़गिड़ाने लगी और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की बारात गई थी, लौट के आ रही थी और उसकी कश्ती जो है इस दरिया में डूब गई। कश्ती के डूबे हुए तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन मैं भुला नहीं पा रही हूँ, बड़ी तकलीफ हुई। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से दुआ किए कि अल्लाह तबारक तआला इसकी डूबी हुई कश्ती, बेटा पतो वगैरह को वापस कर दे। तो चूँकि कुछ ताख़ीर हो रही थी तो फिर दुआ में शरीक हुए। एहसास हुआ कि वो लोग तो 12 साल से ख़त्म है, जानवर मछलियाँ कुल खा गई हैं, कुछ भी बचा नहीं है। इसलिए अल्लाह उसका जो ट्रीट कर रहा है, बना रहा है। सब कौन कैसे कैसे थे लोग, सारे लोगों को बनाया। उसके बाद 12 साल के बाद वो कश्ती फिर से वापस आ गई। एक बार का वाक़या है कि एक जगह बैठे हुए थे, चूँकि ये वाक़या हज़रत अब्दुल मलिक ज़ैल रहमतुल्लाह अलैह की है। कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठे हुए थे हम लोग महफिल में, एक मजलिस में, और काफ़ी अंधेरा टाइप का था। तो अंधेरा महसूस कर रहे थे, तारीकी महसूस कर रहे थे। बोले कि काफ़ी अंधेरा है, हम लोग एक दूसरे को के चेहरे को देख नहीं पा रहे, बात सही से नहीं हो पा रही। दूसरी बात कि कौन कहाँ बैठा है ये पता नहीं चल रहा है। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आसा मुबारक को एक जगह गाड़ दिए बीच में। वो आसा जो है ट्यूबलाइट की तरह जलने लगी। सारे लोग जो है उस रोशनी में अपनी बातों को रख रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी। एक बार का वाक़या है, शेख अहमद रफ़ाई और आदि बिन मुसाफिर और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों शख्स मिल के इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जा रहे थे और रात का वक्त था और रोशनी नहीं थी। तो लोग बड़ी तज़ब्ज़ुब में थे, कभी ठोकरें भी लग रही थी। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उंगली का इशारा किया और इस उंगली से ट्यूबलाइट की तरह रोशनी आने लगी और वो लोग उनके मज़ार तक पहुँच गए। इसके अलावा बहुत सारे करामात हैं। मैं अगर ज़ाहिर करना चाहूँ, बताना चाहूँ तो मुश्किल है कि एक ही वीडियो में इतनी बातें कह सकूँ। खैर, जहाँ तक मुमकिन हो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अबू हफ़स उमर बिन सालेह हदादी हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में हाजिर हुए और बोले कि मेरी उठनी जो है काफ़ी लाग़र है, काफ़ी कमज़ोर है और मैं चाहता हूँ कि मैं हज को जाऊँ, बड़ी मुश्किल है। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की कि अल्लाह इनकी उठनी को इतनी क़ुव्वत दे कि वो हज करने तक पहुँचाए और लेकर आए। उसके बाद वो अपनी उठनी पर सवार हुए और चलने लगे। तो उनकी उठनी की रफ्तार जो है और लोगों की उठनी की रफ्तार से तेज़ हो गई और वो हज को गए। उसके बाद लौट भी गए। एक बार की बात है कि शेख अबुल फजल अहमद बिन सालेह का फरमान है कि हम लोग बैठे हुए थे मदरसे में, गुफ्तगू कर रहे थे। हम देख रहे थे कि एक सांप आया, काफ़ी डेंजरस, काफ़ी ख़तरनाक,
वो सांप आया और इनके कपड़ों पर रेंगता हुआ चलता हुआ इनकी गर्दन में लिपट गया। गर्दन में लिपटने के बाद फिर नीचे उतरा और अपनी पूंछ के बल पर सीधा खड़ा होकर इनसे गुफ्तगू करने लगा। इनसे बातें की, ये क्या बात की, ये क्या वो बात की, लेकिन हम लोग देखे कि इनसे बातें किया सांप और बात करने के बाद वो चला गया वापस। एक बार की बात है, अबू गालिब फजलुल्लाह का फरमान है कि एक बार हम लोग बैठे हुए मजलिस बनाए हुए थे, सारे लोग हाजिर थे, वहाँ जमा हो रहे थे, लेकिन अचानक बारिश होने लगी तो लोग इधर उधर तितर बितर होने लगे। तो हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम तो लोगों को जमा कर रहे हैं, ये बारिश जो है लोगों को तितर बितर कर रही है, ये तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो अल्लाह की रहमत जोश में आई और मजलिस में बारिश बंद हो गई, दूसरी जगहों पर बारिश होने लगी, मजलिस में बारिश बंद हो गई। ये उनके करामात में से एक बार का वाक़या है। अबू गालिब फजलुल्लाह बिन इस्माइल बगदादी अज़जी सौदागर एक दिन दावत में बुलाए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दावत में आए और दावत में आने के बाद उन्होंने ये महसूस किया ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि उनके बच्चे को बुलाया गया। उनका बच्चा नाबीना भी था और इंतकाल कर गया, वो एक बक्से में बंद किया गया था कि दावत हो जाए, इसके बाद उनके तदफैन किया जाएगा। मंगाए और देखे कि लड़का जो है मुर्दा हो चुका है, तो अल्लाह से दुआ किए, वो लड़का जिंदा भी हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी बढ़ गई। एक शख्स इनके पास एक छोटा सा बच्चा लेके आया, वो लड़की थी। वो आके बोला कि हज़रत मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह हमको बेटा और बेटे की शक्ल में औलाद पैदा करना, लेकिन ये बेटी हो गई। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसे लपेटो और लेके जाओ। जब घर लेके पहुँचे और उसके बाद देखा तो बेटी नहीं, बेटा हो गया। एक बार का वाक़या है, मदरसे में थे और काफ़ी लाइलाज बीमारी हो गई, कोरोना की तरह परेशानी थी। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जिन लोगों को इस तरह की बीमारी है या जो लोग इस तरह की बीमारी में मुब्तला हैं वे लोग भी, और जो लोग बीमारी से मुब्तला नहीं हैं वे लोग भी, मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है उस घास को खाएं और मदरसे के कुएं का पानी पिए, इससे उन्हें रफ़ा हासिल होगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। इस बात को तस्लीम किए लोग और पहुँचे और घास का इस्तेमाल किए, उसके बाद कुएं का पानी पिए, सब रोग रफ़ा हो गया, बीमारी रफ़ा हो गई। एक बार की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक शख्स की वफ़ात हो गई। अब्दुल कादिर जिलानी को बुलाया गया और जो है कहा गया कि अल्लाह से दुआ कीजिए ज़िंदा हो जाए। अल्लाह से उन्होंने दुआ की, ज़िंदा तो हो गया, लेकिन वो लोग जो है इनके ऊपर फतवा लगाए, दौड़ा दौड़ी शुरू किए थे। ये कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और बोले कि सारे कब्र वाले खड़े हो जाओ। तो तकरीबन 300 कब्र वाले खड़े हो गए। सारे लोग उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगे, वो लोग परेशान हो गए। इनमें अब्दुल कादिर जिलानी पहुँचे। बहरहाल आगे देखते हैं। एक बार की वाक़या है कि कुछ इनको न मानने वाले लोग आए और चेक करना चाह रहे थे कि आखिर में ये इनके पास विलायत कितने परसेंट, विलायत है भी या नहीं। उन लोग
अपने एक दोस्त को कफन में लपेट के और बांध दिए और बोले कि तुम खामोश रहना, हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनके पास विलायत है कि नहीं। बुला के लाए कि चलिए एक दोस्त का वफात हो गई है, उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने। वो आए, उसके बाद बोले कि अगर वाकई ये मुर्दा है तो मैं इसके जनाजे की नमाज़ पढ़ा दूँगा। नमाज़ पढ़ाए और चल दिए। काफ़ी खुश हुआ वो लोग कि देखिए इनको पता नहीं चला कि जनाजा नहीं। इसके बाद जब वो खोला, उसके चेहरे को देखा तो रियल में, हकीकत में वो मुर्दा हो चुका। काफ़ी घबराहट हुई, दौड़ते हुए लोग पहुँचे, माफ़ी मांगने लगे, माजरत मांगने लगे और बोले कि चल के उसको ज़िंदा कर दीजिए, अल्लाह से दुआ करके उसे ज़िंदा कर दीजिए। हम लोग चेक करना चाह रहे थे, हम लोगों की गलतफहमी दूर हो गई, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम लोग ईमान ले आते। उसके बाद आए और उसको ज़िंदा किया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने ज़िंदा किया। एक बार की वाक़या है कि ये किसी कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, एक यहूदी से मुलाकात हुई। उसने कहा कि हमारे नबी मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, क्या आपके नबी के अंदर भी इस तरह की खुसूसियात थी? तो बोले कि जवाब न दे के बल्कि उनको लेकर गए। कब्रिस्तान में एक कब्र थी, डॉक्टर थी जो 100 साल की लगभग हो गया था। इन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तू खड़ा हो जा। डॉक्टर खड़ा हो गया। फिर बोले अल्लाह के हुक्म से जैसे थे वैसे हो जा। उस यहूदी से बोले कि मैं एक अदना उम्मत हूँ, मेरी दुआ से अल्लाह ताला इनको ज़िंदा कर दिया। तू तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात ही अलग। एक बार की बात है, उनके फर्जंद हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद सैयदना अबू अब्दुल रज़्ज़ाक़ वो कह रहे थे कि बयान करते हैं कि जामाए मंसूर में मेरे वालिद बुजुर्गवार नमाज अदा कर रहे थे। नमाज सजदे की जगह पर वो क्या देखते हैं, एक सांप बार बार आके बैठ जा रहा था। उसको हटा के सजदा किया करते थे। नमाज ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होने के बाद वो जो है अपनी भयानक ख़तरनाक सूरत में आ गया, क्योंकि वह जिन था, वो तंग करना चाह रहा था। तो जब भयानक सूरत में आ रहा था, आया तो उसको समझाए, उसकी बातों को बताए, काफ़ी शर्मिंदा हुआ, माफ़ी मांगा और तौबा किया कि इसके बाद मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के लगभग 100 साल के बाद एक वाक़या पेश आया हिंदुस्तान में। उस ज़माना था राजा रंजीत सिंह का, उन्हीं का ज़माना चल रहा था हिंदुस्तान में। एक मुसलमान था जो मुनकिरे औलिया को नहीं मानता था, लेकिन वह एक लड़की से काफ़ी मोहब्बत रखता था जो हिंदू लड़की थी। उससे काफ़ी मोहब्बत रखता था, लेकिन मोहब्बत रखने से तो कुछ होगा नहीं। उसकी शादी अपनी ही बिरादरी यानी हिंदू बिरादरी में ही हो गई। इसके बाद भी उसके दिल में इस मुसलमान के दिल में इस तरह की तसब्बुर थी कि उसको मैं कैसे पा सकूं, क्योंकि वो औलिया को बिल्कुल नहीं मानता था। वो एक तरह के मुनाफिक, बहुत सारी बातों को नहीं मानता था, सिर्फ नाम का मुसलमान था। एक दिन की बात है, वो शौहर बीवी यानी पति पत्नी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वो घोड़ा लेके आया। लेके आने के बाद बोला कि आप लोग पैदल चल रहे हैं, घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आप लोगों की मंजिल तक पहुंचा देता हूं। शौहर बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग पैदल चले जाएं। बड़ी वज़ीद होने के बाद इतना तक एग्री हुए कि कम से कम अपनी बीवी को ही घोड़े पर बैठा दीजिए, मैं ले जाता हूँ।
क्योंकि उसके शौहर को ये नहीं मालूम था कि ये जो है इसका आशिक है, बेकार आशिक है, वरना नहीं बैठा दिए। वो तलवार लिया था, उस तलवार से तुरंत उसके शौहर को मार डाला, कत्ल कर दिया और घोड़े लेकर चलने लगा। उसकी बीवी जो है घोड़े पर बैठी थी और बार बार पीछे देख रही थी। तो बोला, जो मुनकर था वो बोला कि पीछे क्या देख रही हो, तुम्हारे शौहर को तो मैंने कत्ल कर दिया। बोली कि मैं अपने शौहर को नहीं, मैं अब्दुल कादिर जिलानी को देख रही हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख रही हूँ कि वो अभी तक आए नहीं। इतने में दो शख्स नमोदार हुए और उस घोड़सवार को कत्ल कर डाले और इस औरत को नीचे औरत नीचे उतरी। उसके बाद उसके शौहर को अल्लाह से दुआ करके ठीक करा दिए और इन दोनों को घर वापस जाने के लिए कह दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये रहा कि वली, अगर अल्लाह ने जिसे वली कह दिया तो वली जिंदा है, हम नहीं जानते। उन्हें अल्लाह रिस्क देता है। जिनको विलायत मिल गई उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तबारक तआला खुद रिस्क देता है। उन्हें हर तरह की रिस्क मिलती रहती है, गैर से रिस्क मिलती रहती है। उन्हें खाएं तो भी, न खाएं तो भी उन्हें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ही उनका रखवाला होता है और चूँकि अल्लाह उनकी हर तरह से मदद करता है। कहना यह है कि निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाह वली में यह तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अब गौर करते हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 4 बीवियाँ थीं। उनका नाम सैयदा बीबी मदीना बिनत सैयद मीर मोहम्मद, दूसरी बीवी सैयदा बीबी सादिका बिनत सैयद मोहम्मद शफी, तीसरी बीवी सैयदा बीबी मोमिना, चौथी बीवी सैयदा बीबी सादिका। आपके कुल 49 बच्चे थे, जिनमें 27 बेटे और 22 बेटियां थीं। गौर कीजिएगा, 49 औलादें थीं, जिनमें 27 बेटे थे और 22 बेटियां थीं। कुछ मशहूर मारूफ बच्चे जैसे अब्दुल वहाब जिलानी, शेख ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक, मोहम्मद गिलानी, अब्दुल लील जहार गिलानी, ईसा गिलानी, मूसा गिलानी, इब्राहिम गिलानी, अब्दुल अजीज़ गिलानी, यहिया गिलानी। इस तरह से मुतअद्दिद, यानी कि लगभग तकरीबन 27 बेटे और बेटियां 22 थीं। अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह की विसाल 12 फरवरी 1166 ईस्वी या 561 हिजरी को हुई। इनका मज़ार इराक़ के मशहूर शहर बगदाद में है, जहाँ सारे लोग हाजिर व नाजिर होते हैं और अक़ीदत पेश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इनकी पैदाइश 1078 ईस्वी को हुई, यानी 470 या 71 हिजरी में, 11 रबीउल सानी में हुई या रबीउल आखिर, इसीलिए 11वीं शरीफ मनाई जाती है। 11वीं शरीफ लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये आज विलादत का दिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।